اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کی جانب سے کلیکاشی طریقے کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم 7ویں جماعت کے سماجی سائنس کے 15ویں سبق کا مطالعہ کریں گے اور اس کے اکتسابی صفحات کو حل کریں گے۔ تو چلو دیکھیں 15واں سبق، متحدہ کرناٹک اور سرحدی مسائل۔ اکتسابی حاصل ہمارا ہوگا متحدہ کرناٹک کی تحریک کی تاریخ اور سرحدی مسائل کے متعلق جانکاری حاصل کرنا۔ تو چلو دیکھیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی ہونے کے بعد 26 جنوری 1950 کو اپنے ملک ایک دستور کو اپنایا تھا؟ تو اس وقت کیا ہے، ہندوستان میں 552 صوبوں کو متحد کر کے جمہوری ہندوستان میں انتظامی آسانی کے لیے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یعنی ملک کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ریاستیں بنائے گئے تھے۔ تو اس وقت کیا ہے، کرناٹک میں ممبئی، مدراس، میسور، حیدرآباد اور کوڈگو نامی 5 اہم انتظامی اکائیوں میں تشکیل دی گئی تھی۔ کرناٹک میں کیا ہے، 5 حصے تھے کرناٹک کے، بعد میں اس کو ملایا گیا۔ تو انہی کے بارے میں اب ہمیں یہاں پر مطالعہ کرنا ہے۔ ان اکائیوں میں کنڑیگاز کے جذبات زیادہ مجروح ہونے لگے۔ کنڑا زبان والوں کے لیے ہی ایک علیحدہ زبانی صوبے کی تشکیل کے لیے مختلف صوبوں میں شامل ہو گئے۔ کرناٹک کے مختلف علاقوں کو متحد کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی۔ تو مختلف جد و جہد کے نتیجے میں 1 نومبر 1956 کو ریاست کے اثر تشکیل کمیٹی کی سفارش کے تحت وسیع میسور ریاست کے وجود میں آئی۔ یعنی وسیع میسور، جس کو ہم کرناٹک بولتی، اس کو بೃಹತ್ میسور کہا جاتا تھا پہلے، جو 1 نومبر 1926 میں عمل میں آیا، وجود میں آیا۔ تو اس کے بعد آگے چل کر اسی کو یعنی ریاست میسور کو کرناٹک کا نام کب دیا گیا؟ 1 نومبر 1973 میں 1973 کو میسور ریاست کو کرناٹک کا نام دیا گیا۔ تو اس متحدہ کرناٹک کی تحریک میں کئی ادبا، مجاہدین، تنظیموں کا اپنا ایک اہم کردار ہے۔ کرناٹک کو زبان کی بنیاد پر تشکیل دینے کے باوجود کئی کنڑ بولنے والے علاقے ہمارے پڑوسی ریاستوں میں شامل ہوئے۔ یہ علاقے آج بھی مسائل کا مرکز بن کر ریاستوں کے درمیان تنازع کی وجہ بنے، یعنی جھگڑے کی وجہ بنے۔ تنازع مطلب جھگڑا۔ آئے اب ہم ان سے پہلے متحدہ کرناٹک کے متعلق اساتذہ کے ساتھ مل کر درسی کتابوں کی مدد سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے، یعنی ہمیں درسی کتابوں کی مدد لینا چاہیے، ان کا استعمال کر کے آگے آنے والی سرگرمیوں کو حل کرنا چاہیے۔ تو چلو ہماری پہلی سرگرمی دیکھو، یہاں پر ہے پہلی سرگرمی، کیا آپ متحدہ کرناٹک کی تحریک میں حصہ لینے والے اہم اشخاص اور تنظیموں کے نام کی فہرست بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ضرور۔ دیکھیے گا، اہم شخصیتیں: راہا دیش پانڈے، وائلگل نارائن راؤ اور کنگل ہنمنت رایا، آلور وینکٹ راؤ، سر سیدپا کومبلے، یہ اہم اشخاص ہیں۔ اور اس دور میں بنائے گئے اہم تنظیمیں: کرناٹک ودیا ورتک سنگھ، کرناٹک ایکی کرن سبھا، کنڑا ساہتیہ پریشد، کرناٹک ایکی کرن پریشد۔ اس طرح سے کیا ہے، کئی تنظیمیں جو کرناٹک کو متحد کرنے کے لیے، کرناٹک کی متحدہ تحریک چلانے کے لیے کوشاں تھی۔ تو اگلی سرگرمی ہے متحدہ کرناٹک کی جدوجہد کے متعلق ایک کہانی لکھیں۔ تو یہاں پر ایک کہانی دیکھیے گا، کیا ہے، کچھ اس طرح سے: آندھرا پردیش کی تشکیل کے بعد لسانی بنیاد پر ریاستوں کی اثر نو تشکیل کی مانگ میں شدت پیدا ہوئی۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں کی اثر نو تشکیل سے متعلق رپورٹ دینے کے لیے
एक कमीशन मुकर्रर की से SRC यानी इसके सदर यस फजल अली थे। तो इसीलिए फजल अली कमीशन भी कहा जाता है इसको। ये और इनके साथ HN कंजरू और KM पन्नीकर इसके दीगर अरकान थी। ये कमीशन क्या है? कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लिसानी और इंतजामिया की सहूलत की बुनियाद पर हिंदुस्तान की रियासतों की असर नौ तश्कील की गई। मुल्क के सभी जमातों ने इस कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी दी, मगर कासरगोड़ा रियासत, केरला बल्लारी के कुछ ताल्लुका को रियासत आंध्र प्रदेश में जम करने की सलाह को कन्नड़िगाओं ने एक आवाज बनकर उसकी मुखालिफत की। रियासतों की असर और तश्कील रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। अजीम रियासत मैसूर 1 नवंबर 1956 को वजूद में आया। इस तरह से क्या एक छोटी सी कहानी लिखे। इसके अलावा आप दूसरी भी कहानी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर 1956 से पहले राइज हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर 1956 से पहले राइज मुंबई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और कोडगु इलाकों की निशानदेही करें। तो यहाँ पर क्या है, ये नक्शा हमें सातवीं जमात की पाठ की किताब में मिलता है, मुत्तहदा कर्नाटक सबक में। यहाँ पर देखो, ये येलो रंग का मैसूर का है, ये कोडगु है ब्लैक रंग का, ये मद्रास, ये मुंबई और ये हैदराबाद। इस तरह से क्या है यहाँ पर मौजूद है, ये रंग का ये कोडगु इलाका। तो इस तरह से क्या है, नक्शा निकाल कर हम इनके कलर भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 रंग। तो 5 रंग क्या है, अलग अलग हिस्से में भरकर हम जाहिर कर सकते हैं कि ये इलाके इस खित्ते में थे। और उसके बाद आगे आता है 34 सरवर में। 34 सरवर में देखिएगा क्या है, उन जगहों और रियासतों की फहरिस्त तैयार कीजिए जिनसे रियासत कर्नाटक सरहदी मसाइल का सामना कर रही है, और हिंदुस्तान के नक्शे में अपने साथियों की मदद से इन जगहों या शहरों की निशानदेही करते हुए उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। तो यहाँ पर नक्शे का तो बाद में देखेंगे, लेकिन नक्शे अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इलाकों के मुताल्लिक देखिए। रियासतों के नाम केरला के साथ क्या है, कासरगोड़ा का मसला है, ये डालना था कासरगोड़ा। और आंध्र प्रदेश के साथ आलूर, अधोनी, रायदुर्गा और मडकाशिरा ताल्लुका है। तमिलनाडु के साथ हुसूर और तालावाड़ी ताल्लुका है। और महाराष्ट्र के साथ चंदागढ़ा, शिवपुरा, जत्तार, अक्कलकोटा ये इलाके मौजूद है। तो इस तरह से इसके बाद हम देखते हैं अगली सदर में हमारी, आप अपने वालिदैन और असतिजा से बहस व मुबाहिसा करने के बाद रियासत कर्नाटक के सरहदी मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं, सलाह दें। तो अगर हम सलाह दें तो देखिए, रियासती हुकूमतें आपस में बहस करके, बात करके मसले का हल निकालना चाहिए। अवाम के माहिर और ख्वाहिश के मुताबिक सरहदी मसाइल को हल करना चाहिए, और उसके अलावा आला सतह की कमीशन का क़याम करके इसके सिफारिश के मुताबिक सरहदी मसाइल को हल करना चाहिए। इस तरह से हम मशवरा दे सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या है, हम दूसरे मसाइल भी मशवरे भी दे। तो अब अगला सबक है हमारा 24वां, और इस सबक का आखिरी सबक है। अभी ज्योग्राफिया का कुछ हिस्सा बाकी है वीडियो करने का, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वही डालेंगे। तो अब यहाँ पर इसका सबक का, इस किताब का आखिरी सबक हमारा दिफाई फौज। देखिएगा, इक्तसाबी महासिल हमारा है हिंदुस्तान की तीन किस्म की फौज, बर्री, बहरी और फिजाई के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारी खेती के, तो यहाँ पर क्या है, चंद इक्तबास दिया गया है
इसको पढ़कर क्या है बच्चों से बहस करवा सकते हैं, उनको मजीद मालूमात दे सकते हैं। तो यहाँ पर अहम पॉइंट हमें यहाँ पर हिंदुस्तान 3 तरह की दिफाई फौज रखता है, बर्री फौज, बहरी फौज, हवाई फौज। इन तीनों का सदर दफ्तर, इन तीनों अफवाज का सरबराह सदर हिंद होता है, और इन तीनों की अफवाज का मरकज सदर दफ्तर दिल्ली में है। मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क की हिफाजत तीनों अफवाज अपने मुल्क की दिफा का काम करते हैं। दिफा मतलब हिफाजत। इसके साथ साथ नौजवानों को अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अफवाज में भर्ती करके सरहदों की देखभाल के लिए काम करने की तरगीब दी जाती है। मसलन इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एनसीसी, होमगार्ड, तहफ़्फ़ुज़ी गार्ड वगैरह वगैरह। बर्री फौज में अगर दाखिला लेना है तो कम अज़ कम 18 साल की उम्र होना शर्त है। 18 साल से कम शख्स, शहरी, कम हिंदुस्तानी शहरी बर्री फौज में दाखिला नहीं ले सकता। और अगर हवाई फौज में दाखिला लेना है, हवाई फौज में भर्ती करना है, तो उसकी उम्र कम से कम 16 साल की होना चाहिए, लाजमी। इसके अलावा इसमें क्या है, लड़कियों को भी फौज में भर्ती होने का मौका दिया गया है। अब यहाँ पर इक्तिसाबी सफ़ात है, तो देखिएगा पहला सफ़ा हमारा, मुल्क के लिए फ़ौज क्यों चाहिए। कमरे जमात में असतिज़ा के साथ बहस करके उसकी जानकारी हासिल करें। मुल्क के लिए फ़ौज की ज़रूरत क्या है, मुल्क की और शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए फ़ौज की ज़रूरत है। तो अगली सरगर्मी है मंदिर जजील में, मतलब इसमें, इस बॉक्स में जो है उनमें चंद इजाफी फ़ौज और उसके माउन फ़ौज और कबल फ़ौज में दर्जाबंदी कीजिए। यहाँ पर दो ही कॉलम दिया गया है, इन दो कॉलमों के हिसाब से माउन फ़ौज यानी दिफाई फ़ौज के माउन फ़ौजों में सरहदी फ़ौज आती है, बीएसएफ सरहदी रास्ते की फ़ौज आती है, साहिल की फ़ौज आती है, मरकजी सनती हिफाजती फ़ौजी दस्ता, ये माउन फ़ौज में आता है। और कबलज माउन फ़ौज में होमगार्ड, सिविल पुलिस, पुलिस को है एक्चुअली सिविल पुलिस आना चाहिए यहाँ पर, सिविल पुलिस, ये कर लीजिएगा, सिविल पुलिस, एनसीसी, भारत की रेड क्रॉस तंजीम, ये आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या है, असतिजा या से बहस कर सकते हैं कि आपके गांव या शहर में अगर कोई एनसीसी, होमगार्ड, भारत रेड क्रॉस तंजीम में रहने वाले शख्स हैं तो उनसे रुजू करके यानी मुलाकात होकर, मदरसे को दावत देकर उनसे उनसे काम के बारे में, वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में बहस कर सकते हैं। और यहाँ पर सरगर्मी देखिए, आखिरी सरगर्मी, आपको हिंदुस्तान की दिफाई फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश है, क्यों? आपकी राय पेश करिए। अगर तलबा से कहें कि तलबा अगर दिफाई फौज में भर्ती होना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्यों उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके बारे में तलबा से कह सकते हैं। तो हाँ, मैं हिंदुस्तान की हिफाजत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इसी मिट्टी से बनाया गया है और इसी मिट्टी से पैदा किया हुआ है, अनाज खाते हैं, और आखिर इसी मिट्टी में एक दिन हमें मिलना है। माशाल्लाह, यहाँ पर क्या है, ये हिस्सा ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।